हाय हार्दिक, हाय रिया। कैसे हो? हाय। Wow, your मैं at least फर्स्ट क्लास। light at your place is like better than light at my place. So first of all, thank you for agreeing because this is the format. This is format that I was talking about for like uh, uh, for last 1.5 year. It is more like a casual chit chat because everywhere you are going to find like the formal webinar kind of thing. Everybody is speaking in an accent, English accent and all. So I wanted to create something like a Gary Ask Gary V. Okay, if you want to abuse, you can abuse also. If you want to go into bilingual, you can also go into bilingual. You can mix English and Hindi. You can talk, but I believe that this is the best way to reach out to the people out there because not everybody, when it comes to talking, when it's come to webinar and events, uh, a lot of population from the tier 2 and tier 3 cities are unable to understand what is going around. This is something which I have seen into startup ecosystem. You are from Jaipur. You are still, it is a tier 2, not a complete metro, you can say. So that's why you are my first guest, so that I really want to connect to that India which is out there. So I think we can start. I think people are started joining also. Okay, but if they will join, the screen will go small. Nothing to worry. uh, ओके। Okay, Hardik, first I will just like to introduce you. So this is Hardik Laskari. I met him online some 1.5 years back. So that time of that point of time, I was just trying to enter the startup ecosystem back, and I was just going through the LinkedIn, and I was randomly sending friend requests to every person. And I think in the process only I sent my friend request to connection request to Hardik. Also, he accepted it. Surprisingly, he was one of the influencer. I remember that point of time I had 235 connections to be exact, and Hardik was having more than 10,000 connections at that point of time, 1.5 years back. Still, he accepted my connection, so it was like a win thing for me. A LinkedIn influencer has accepted my connection, and over a period of time I started to see that he not only accepted my connection, he was interacting with me over comments. He used to like my posts, he used to comment on that, he used to add value to the other people who were commenting into it. That's how we started interacting. I believe one day we just started chatting and then exchanged number and had a call, and from that point of time I think we met some 3 times, 2 3 times. He was also यस one वी of हैव। yeah, he once we met for casual lunch, and beer for me, lunch for him. So it was our first meeting. Then second time he was one of the speakers at our event on how to use LinkedIn. LinkedIn the best way for branding and marketing of the startups. So he was there, and the response was really good that time. I think we had somewhere around 100 people attending our event. Though we had need to cut his session short by I believe 10 minutes, but the entire 20 minutes for which he spoke and the presentation was really good. So this is Hardik. We both are fan of MS Dhoni. He calls me Bhaiya, I call him Bhai. So we have that kind of relationship, and I generally tell everybody that I am the most approachable person on the LinkedIn, but this is the guy who is most approachable on the LinkedIn. Anybody can approach him, and he always responds. This is Hardik. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड ये बताने के लिए मैं हिंदी भी यूज करूंगा जो टोटली के बाइलिंगुअल होने वाला है। सो वही है कि MS धोनी से कनेक्शन जो स्टार्ट हुआ वो कनेक्शन अभी तक तो नहीं रुका है, और आप कितना भी चाह लो कुछ भी कर लो वो कनेक्शन अब जिंदगी भर का हो गया है हम दोनों के बीच में। तो आप, मैं सच में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बोलने के लिए भैया बोलता हूँ। You are like my elder brother because I have been taking advices also from you. I have been taking suggestions also. तो अब ये तो रिलेशन एक लाइफ टाइम का बन गया है आपके और मेरे नहीं, ये तो रहेगा बिकॉज आई हैव सीन
you are like you are somebody whom we हम लोगों को चाहिए ऐसे लोग जिनके करीब you feel comfortable. You are one of those person. If you are around, people feel comfortable with you. So it is always good to have you around. Okay, so as I already mentioned, ये बहुत casual chit chat होने वाला है because I am not going to go into the formals webinar and all. जिसमें सब पक गए हैं. Every day तुम देखते होगे LinkedIn पे ही आता है कि we are tired of webinars, we are tired of webinars. मैं खुद टायर हो चुका हूँ जाकर वेबिनार्स में बोल कर सेम चीज इंट्रोडक्शन. आई एम रियली टायर्ड. तो मैं भी आज बिल्कुल फ्री मूड में आया हूँ यहाँ पे. सरप्राइजिंगली मैंने पूरे लॉकडाउन में इन द लास्ट 4 मंथ मैंने बस 2 वेबिनार अटेंड किए हैं और वो भी दो बंदे थे जिन्होंने कराया. दे वर लाइक रियली क्लोज टू. मैं उनको मना कर ही नहीं पा रहा था. तो दैट्स व्हाई. Okay. So let's understand your journey, Hardik. Now, being from Jaipur, and हम लोगों को because you are quite younger to me. मुझे लगता है कि you are younger like 12-15 years younger to me. मुझे इतना लगता है. But still जो उस समय उस टाउन का जो entire setup था, माहौल था, वो completely different था. Content को अभी भी नहीं देखा जाता है इस जरिए से कि you can make earning from content in smaller towns. So how you tried? Because I remember you were when we started chatting, you were working as an article under some CA at that point of time, if I remember. Yes. And you are pursuing your CA. Yes. So how was the entire transition and why content? Why you came into content thing? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे कंटेंट राइटिंग जो थी वो बहुत शुरू से पसंद थी, क्योंकि पीपल से इट ऑफन कि कंटिन्यू देयर वाज समबडी. ओके, सो पीपल से इट ऑफन कि आई गॉट कंटेंट राइटिंग एज अ गॉड गिफ्ट और आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट एवर सिंस माय चाइल्डहुड. मेरे साथ ऐसा नहीं था. आई ऑलवेज हेटेड राइटिंग. स्कूल में भी जो एसेज होते हैं ना कि हमारे बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखना है, काओ पे ऐसे लिखना है, या फिर जो बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं, आई ऑलवेज यूज्ड टू इग्नोर देम. इसलिए मेरे कभी स्कूल में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वाज नेवर इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइटिंग टिल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, I come from a CA background, as Shivesh bhai also mentioned. 11th में I took commerce क्योंकि वही एक सब्जेक्ट था जो मेरे परसेंटेज के हिसाब से I could have taken. साइंस के लायक परसेंटेज थी नहीं. आर्ट सेकेंड इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं और ये मैं मेरी सिस्टर से देख चुका था. तो कॉमर्स वाज द ओनली थिंग आई वांटेड टू बी इनटू. देन आई केम इनटू द सीए फील्ड और सीए फील्ड में आने के बाद भी रियलाइज हुआ कि ठीक है, हाँ मुझे अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. एंड सिंस आई कम फ्रॉम बनिया कम्युनिटी, अग्रवाल कम्युनिटी, तो हमारे यहाँ फिनेंस और मनी को कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दी जाती है. तो हर कोई खुश था और मैं भी बचपन से पापा को देखता हुआ आ रहा था फिनेंसेस के साथ में डेबिट क्रेडिट करते हुए. सो आई वाज ऑल सेट कि हाँ मुझे सीए बनना ही बनना है. बट फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज लाइफ हालांकि बहुत कम होती है सीए स्टूडेंट्स की, बट जो भी कुछ एक कॉलेज लाइफ थी थोड़ी बहुत, वो एक्चुअली मेरी लाइफ पे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जहाँ पे मुझे एक लड़की पसंद आ गई कॉलेज में. और वो लड़की मतलब बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत. Now it is getting interesting. Now it is getting interesting. तो बोलो. ओके, तो वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और मुझे ऐसा था कि ठीक है. और वो धीरे धीरे फिर हमने जब बातचीत स्टार्ट की तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई. बट हर एक जो चीज लड़के के साथ होती है कि लड़के को हमेशा डर लगता है कि कहीं मैं फ्रेंड जोन ना हो जाऊं, कहीं मुझे फ्रेंड जोन ना कर दे. वो डर मेरे मन में भी था काफी टाइम तक. बट फाइनली मैं एक दिन उसके पास गया एंड आई कन्फेस्ड हर कि यार मुझे तो तू पसंद है. आई रियली वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद यू. उसने मुझे पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट किया और ये बोला कि वो लड़की, उसने बहुत अच्छी राइटर थी, शी यूज्ड टू राइट फॉर वेरियस ब्लॉग्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा. तो उसने मुझे बोला कि यार देख, मैं तो लिखती भी हूँ इतना अच्छा, मैं तो बोलती भी हूँ, और मैं लिखने में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं ऐसी सब एक्टिविटीज में. तो शी टोल्ड मी कि किस बिहाफ पर मैं तुझे हाँ बोलूँ. मैं तुझे कहीं अगर मैं तेरे साथ जाऊंगी भी तो मेरी एक स्टेटस अलग लेवल पर है, तेरा स्टेटस अलग लेवल पर होगा, तो काम कैसे चलेगा. तो शी ह्यूमिलेटेड मी इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास. और वो बात इतनी ज्यादा चुभ गई मुझे कि मैं 2 महीने के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए भयंकर डिप्रेशन में था, जहाँ रूम बंद करके मैं सिर्फ ये सोचता था कि क्या करूंगा मैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं करूंगा. फ्रैंकली मैंने 3 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, बट तीनों बार रह गया किसी ना किसी वजह से. एक बार मैंने मरकरी की गोलियां खाई, बट मुझे बाद में पता लगा कि
सिर्फ 10 या 12 मरकरी की गोली खाने से कुछ नहीं होता, मरने के लिए 50 मरकरी की गोलियां खानी होती है। एक बार मैंने फंदे से लटकने का कोशिश की, बट यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख ली, समझ में नहीं आया कि फंदे से लटकना कैसे है। एक बार ऑलमोस्ट ऊपर छत पे चला गया था, बट फिर रियलाइज हुआ कि यार अगर बच गया तो घर वाले जिंदगी भर के लिए ताने देंगे, तो फिर तीनों प्लान्स को ड्रॉप किया और 2 मंथ्स के लिए आई वाज इन रियल डिप्रेशन। बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि डिप्रेशन में रह के तो अपनी पूरी लाइफ नहीं काट सकता, इस चीज के लिए तो घर वालों ने नहीं जन्म दिया है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग। मैं सिर्फ अपने पेन्स को हील करने के लिए लिखना स्टार्ट किया मैंने। और सिंस आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर सिटी, तो मैं उस टाइम जयपुर पे लिखा करता था। और फेसबुक पे बैक इन मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, जब फेसबुक पे एक सेक्शन था डॉक्यूमेंट करके, जहां जैसे आप लिंक्डइन पे आर्टिकल्स पब्लिश करते हो, वैसे आप फेसबुक पे भी आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते थे। तो मैंने वहां पे जयपुर के बारे में लिखना स्टार्ट, वर्ड फाइल के जैसा, मैंने वहां पे जयपुर के बारे में लिखना स्टार्ट किया। और कोइंसिडेंटली राजस्थान पत्रिका जयपुर का एक लोकल न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर ने मेरा एक आर्टिकल पढ़ा और उन्होंने मुझे बताया कि कैन वी पब्लिश योर आर्टिकल इन न्यूज़पेपर। तो वो मेरे लिए एक बहुत अलग लेवल की बात थी कि एक न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल पब्लिश होगा। वो आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने मुझे रीच आउट किया फ्रीलांस राइटिंग के लिए, और ऐसे करके मेरा राइटिंग करियर में, बट आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं राइटिंग में कभी खुद नहीं आया, मुझे राइटिंग फील्ड में खींच कर लाया गया, और वो लड़की एक तरीके से मुझे खींच कर लाई। तो दिस इज द एंटायर जर्नी। बहाना होता है, बहाना ऑलवेज होता है कि यू किसी और की वजह से, इट इज ऑलवेज योर डेस्टिनी। मैं बोलता हूँ कि nobody will tell you what to do, nobody can drag you how to do it, but it is always your destiny. But it was good that because of that girl we have like a brilliant content writer with us and a really nice human being with her. So I think I can thank and whoever is seeing it live on Facebook and the people who has joined us on Zoom can वो सबसे अच्छी चीज है कि वो इस टाइम हमें फेसबुक पे भी देख रही है, एंड शी इज वन ऑफ दोज पीपल जो जब भी मैं कहीं पे भी पब्लिश करता हूँ, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, कोरा, मीडियम, इंस्टाग्राम में, जहाँ पे भी पब्लिश करता हूँ, आज की डेट में वो लड़की मेरे फर्स्ट 5-10 व्यूअर्स में या 5-10 रीडर्स में से एक होती है। तो शी इज स्टिल फॉलोइंग मी, हम दोनों अभी भी बात करते हैं, बट अब उसके मन में ग्रजेस रह गए हैं, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं ये वाली चीज है कि शायद वो चीज नहीं बोलती, बट अब मुझे अच्छा लगता है कि उसने बोला, इसलिए वो इंस्पिरेशन बनी मेरी। That's okay, that's okay. Inspiration is always good. कहते हैं ना कि जब तक तुम्हारे अंदर एक म्यूज नहीं रहता है, जो ये बोलता था, क्या कहते हैं, पिकासो, पैब्लो पिकासो बोलता था, he always used to बहुत मिस्ट्रेस रखता था, and then he used to have a lot of fun. बोलता था they are my muse. जब तक वो नहीं रहेंगे I am unable to create good paintings. So वो हमेशा एक होना चाहिए, something like that. So I will just get back to a follow-up question on that. When first time the newspaper contacted you कि they want to print your, wow, क्या feeling था? How moved you? बहुत अल्टीमेट फीलिंग था, क्योंकि मैं सच बताऊं तो उस टाइम मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरा आर्टिकल पब्लिश होगा तो इतने लोग पढ़ेंगे। मेरे मन में ये चल रहा था कि जब ये आर्टिकल पब्लिश होगा तो जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो अगर मैं अगली बार उनसे मिलूंगा तो उनके मन में मेरे लिए लिमिटेड मेरा स्कोप था सोचने का उस टाइम। नहीं, वो होता है, वो we are from small cities ना, तो हम लोगों का स्कोप वही होता है कि if you will do something good that our parents will feel proud among the relatives and all. So that is वो कोई normal है, that is nothing there. And ठीक है, चलो वो हो गया. Then how you move forward? Because I remember कि you were working with one of your friends, Rahul. I don't know whether you are working with him or not right now. Then you started your own company. So from being a CA intern to trying your head into content, getting some recognition from some local newspaper into content, then moving completely toward content. So वो जो जर्नी था, I know कि उसमें डाउट, सेल्फ डाउट बहुत होते कि मैं ये कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. वो अभी मेरे साथ भी होता है. इवन आफ्टर बीइंग इनटू द इकोसिस्टम फॉर 12 years, वो सेल्फ डाउट मेरे साथ रहता है कि मैं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना कि फेल होता हूँ. फिर मैं सोचता मेरा टिपिकल है, अगर फेल हो जाऊंगा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये जिंदा बच जाऊंगा, खाना खा पाऊंगा, घर में रह पाऊंगा, रह जाऊंगा. ठीक है, चलो करते हैं. तो तुम्हारे भी सेल्फ डाउट आते हैं, तो क्या थे सेल्फ डाउट एंड हाउ यू ओवरकेम दैट? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सिंस आई टोल्ड कि मैं 2013 में स्टार्टेड राइटिंग, बट 2015 तक आई वाज डूइंग सीए.
तो आई वॉज स्टिल हैप्पी कि ठीक है फ्रीलांस इनकम थोड़ी बहुत आ रही है, राइटिंग से तब तक आना स्टार्ट हो गई थी। इनफैक्ट मैंने 1-2 ब्रांड्स के साथ भी काम कर लिया था, बट तब तक भी मुझे ये था कि मुझे सीए ही करना है, मुझे सीए फील्ड में ही आगे जाना है। बट देन आई रियलाइज इसमें थोड़ा बहुत डेस्टिनी का रोल ये रहा कि आई फेल्ड 4 टाइम्स इन सीए फाइनल पेपर्स। तो अगर कहीं ना कहीं अगर मैं शायद सीए बन जाता तो मैं अपना पैशन परस्यू नहीं करता, बट क्योंकि मैं 4 बार सीए में फेल हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कुछ अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो एक जो चीज मुझे लगती है सबसे सबसे अच्छी चीज जो आप एक ब्रूटल ट्रुथ बोलते हो वो ये कि पैशन बहुत ओवररेटेड चीज है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि पैशन के चक्कर में आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओ और सिर्फ आप अपने पैशन के पीछे लग जाओ। देयर हैज टू बी स्टडी, देयर हैज टू बी सम एक्सपीरियंस बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग। तो वही चीज मैंने रियलाइज की कि मैंने जब 2 साल में वो एक्सपीरियंस लिया राइटिंग का, तो मुझे रियलाइज हुआ कि राइटिंग एक बहुत वायबल फील्ड है, और अगर मैं सीए नहीं भी बन पाया तो भी मैं राइटिंग में कुछ ना कुछ बना सकता हूँ अपने करियर को। बट आई टुक गुड 2 years टू रियलाइज इट। फिर जब मुझे वो रियलाइज हुआ उसके बाद फाइनली जब मैंने 4th टाइम आई फेल्ड इन माई सीए पेपर्स, तब आई वेंट टू माई फादर एंड आई टोल्ड हिम कि राइटिंग इज सीए इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे फादर ने उस शाम को सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। पहली चीज, अगर सीए नहीं करोगे तो क्या करोगे? आई टोल्ड हिम मुझे राइटिंग करनी है। देन उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या तुम राइटिंग करके लाइफ टाइम के लिए अपने फैमिली को संभाल पाओगे, क्या इनफ लाइवलीहुड कमा पाओगे? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने थर्ड चीज पूछी कि क्या तुम रियली पैशनेट हो या सिर्फ क्योंकि तुम सीए में फेल हो रहे हो इसलिए तुम्हें राइटिंग करनी है? आई टोल्ड हिम नहीं, मैं सही में पैशनेट हूँ। एंड ऑल ही टोल्ड वाज ठीक है, जो तुम्हें करना है जाओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि घर वालों का सपोर्ट कितना जरूरी होता है आपके लिए, क्योंकि हर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा था मेरे सीए में फेल होने पर, बट माय पेरेंट्स स्टूड आउट फॉर मी। एंड देन व्हेन इट डिड, तो आई स्टार्टेड फुल फ्लेजेडली विद राइटिंग। मैंने 2 साल के लिए अराउंड फ्रीलांसिंग की, फुल टाइम फ्रीलांसिंग की। देन आई स्टार्टेड लाइक आई को-फाउंडेड अ कंपनी विद माय एक्स को-फाउंडर राहुल। एंड फाइनली लास्ट ईयर आई रियलाइज कि ठीक है, राहुल और मेरे बीच कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे हम लोग नहीं बन पा रहे थे, तो वी सेपरेटेड इन अ गुड सेंस एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। सो द पॉइंट वाज कि मैंने ऐसा नहीं है कि कभी भी एकदम से डिसीजन लिया कि ठीक है मुझे ये चीज करनी है और मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। आई टुक इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये चीज करनी है तो कैसे करनी है, जो चीज मैं छोड़ रहा हूँ उसके बाद में क्या करूंगा। वंस आई वाज क्लियर इन माय माइंड, देन आई टुक दैट रिस्क। तो ये आई थिंक मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने अभी तक बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। I remember when I after 12th, so I घर वालों ने मुझे इंजीनियर बना दिया, because मैं हमेशा बोलता नहीं कि if you are born in a place like Jharkhand and Bihar, then either you need to be an engineer or a doctor or a failure. यही 3 ऑप्शन है वहाँ पे। Okay. डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं तो फेलियर हो। तो I was from maths background, I was really good into studies. तो मेरे घर वालों ने बोला कि it was नहीं होता कि बिना बोले हुए एक प्रेशर था कि इंजीनियर बनेगा लड़का, घर में चाचू IITN एंड ये सब तो था कि बनना है। कजन ब्रदर सब IIT निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा ओरिएंटेशन नहीं है, इंजीनियर अच्छा नहीं बनेगा। आई वाज इन लव विद द सब्जेक्ट मैथ्स, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन मैथ्स। तो मैं अपने मम्मा के पास गया एंड मैंने बोला कि मम्मा इंजीनियरिंग बनना है, मैं ग्रेजुएशन करूंगा। और से देखा मेरी मम्मा ने मुझे, बोलती है ना इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, फिर आएगा कैसे? तो वो एक परसेप्शन था कि अगर इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो अभी तक है। फिर मेरे डैड ने मुझसे पूछा क्या करेगा, मैंने कहा बाबा आई वांट टू परस्यू, मुझे आई रियली लाइक मैथ्स, आई वाज लाइक अ CBSE टॉपर इन मैथ्स, सो आई वांट टू परस्यू माय इंटरेस्ट इनटू मैथ्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, वो भी मैं घर में बोल के आया था कि मैं 1 साल घूमूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी पसंद आएगा तब एडमिशन लूंगा। 1 साल के बाद मैंने डैड को बोला कि पापा करवा दो एडमिशन। So I was like that. Okay. तो then उसके बाद हुआ, but after जैसे तुम्हारे CA के साथ हुआ 3-4 अटेम्प्ट में when you failed, तो first year, second year, third year तक आते आते I lost my love for the subject. So I did my graduation in statistics honors. तो उसके बाद I lost my love into this subject. फिर मैंने घर में बोला कि मुझे नहीं करना है। फिर वही क्वेश्चन तो करेगा क्या, मैथ्स करना था, इंजीनियरिंग के थे, ये भी कर लिया तूने, अब क्या करेगा? फिर मैंने बोला कि लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या करूँ, डोंट पुश इट ओवर मी। और माय डैड सपोर्टेड इनटू दैट, क्योंकि घर में और तो सारे नहीं करते हैं, बट माय डैड वाज ऑलवेज गाइडिंग सपोर्ट।
and I am really thankful to him कि आज जो भी हूँ मैं, just because he has shown that much confidence into me. And this is मैं सबको बोलना चाहता हूँ, whoever is there, कि if you are facing any problem, जैसे तुम्हारे साथ भी हुआ, एक नहीं होता है कि डबल माइंड में आ जाते हैं, करूँ क्या नहीं, अपने पेरेंट्स से जाके spoke to your dad, I spoke to dad. Talk to somebody in your family who understands your passion and vision and things that you can do. Talk to that person, and then you will come on a better position of taking a decision. Okay, Hardik. So after that, founding the company, first client. How did you got your first client? Getting first client for my company was really easy, क्योंकि जब मैंने 2019 में established this company, तब तक मेरा personal brand इतना ज़्यादा बन चुका था कि उसके बाद बस clients को ये बोलना था कि ठीक है, now I am not working as a freelancer anymore. I have set up my own agency. So getting first client was for content flavor was easy. But if I want to share, तो basically मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने अप्रोच किया था राजस्थान पत्रिका में मेरा आर्टिकल पढ़ने के बाद में. बट उसके बाद की जो जर्नी थी मेरी फ्रीलांसिंग में, वो बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी, क्योंकि एक रीजन ये था कि तब तक लिंक्डइन पे मुझे नहीं पता था लिंक्डइन कैसे यूज होता है, मुझे क्या करना चाहिए. तो बैक देन लिंक्डइन बहुत एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म था. तो वो एक बहुत खतरनाक बड़ी जर्नी थी, जहाँ पे मुझे naukri.com पे भी कुछ फ्रीलांसिंग जॉब्स ढूंढनी पड़ी. इनफैक्ट मुझे याद है कि आई इवन उस टाइम न्यूज़पेपर्स में एक सेक्शन आता था फ्रीलांसिंग जॉब्स के लिए, जहाँ पे वो लोग ऑफर करते थे कि अगर आपको 1000 वर्ड लिखने हैं तो हम आपको 100 रुपए देंगे. और मुझे तब वो भी बहुत ज्यादा लगते थे कि अच्छा, मुझे 1000 वर्ड लिखने के 100 रुपए मिलेंगे, 1000 वर्ड 4 घंटे में लिख पाऊंगा तो 100 रुपए मिल जाएंगे मुझे. सो बैक देन वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था. तो मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स में से देखकर वहाँ पे भी आर्टिकल्स लिखे, कुछ कंपनी से मुझे रीच आउट किया जहाँ पर उन्होंने मुझे ऑफर किया 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, मैंने उनके लिए भी आर्टिकल्स लिखे. तो एक वो जो जर्नी थी फ्रीलांसिंग की, वो एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत टाइम कंज्यूमिंग जर्नी थी, बट उसने मुझे राइटिंग के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जो आज जाकर मुझे लगता है कि कितनी बेनिफिशियल है मेरे लिए. So now you have moved from not only you are doing content writing, but अब तुम branding या marketing strategies पे भी काम कर रहे हैं. So how was that transition from a typical content writer to the holistically तुम थोड़ा बड़े, like you are standing at a higher position now and you can do more things. So how was that transition, and how you managed it? Because when it comes to branding and marketing, you need to understand everything which goes around a brand. तो उसके लिए बहुत स्टडी करना होता है. You need to be really sharp on things. You really need to have a very right eye to catch things about a brand. तो वो कैसा ट्रांजिशन और जर्नी कैसी रही? वहाँ पे बिलीव कि इस टाइम जब हमें कंटेंट राइटर्स सुन भी रहे हैं, यहाँ से एक और चीज जो निकल के आती है कंटेंट राइटर्स के लिए या फिर जो कोई भी कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, कि दिस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज राइट नाउ इफ यू आर इनटू दिस. द रीजन इज कि अगर आप कंटेंट में हो तो आप मार्केटिंग में जल्दी से जंप कर सकते हो, अगर आप ब्रांडिंग में हो तो आप कंटेंट में आ सकते हो, अगर आप मार्केटिंग में हो तो आप ब्रांडिंग में जा सकते हो. तो ये एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच कर सकते हो. एंड द मेन रीजन इज क्योंकि चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप ब्रांडिंग कर रहे हो, चाहे आप कोर कंटेंट कर रहे हो, कंटेंट इज एक्चुअली प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल, अ कोर रोल ईच एंड एवरीवेयर. अगर आप देखोगे पर्सनल ब्रांडिंग भी है, वहां पे भी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मार्केटिंग है, वहां पे भी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप पेड कैंपेनिंग भी कर रहे हो, पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो वहां पे भी कंटेंट या कॉपी जिसको हम बोलते हैं एड कॉपी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो जब आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर अबाउट इट, तो आई रियलाइज कि जितनी भी बड़ी ब्रांड्स की हम बात करते हैं, जितनी भी बड़ी मार्केटिंग एक्टिविटीज की हम लोग बात करते हैं, वहां पे कंटेंट इज द कोर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. So once I realized it, I started seeing each and everything from the spectacle of content. I started seeing कि ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंटेंट कैसे यूज आ रहा है. अच्छा, जब मैं इतनी छोटी सी चीजों को यूज करने लगा कि फॉर एग्जांपल अगर नरेंद्र मोदी कोई चीज बोल रहे हैं तो वहां पे वो कंटेंट को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे उनकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट डिसाइडेड है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे कंटेंट कैसे जाता है. सो इट गेव मी अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड रिवर्स इंजीनियरिंग ईच एंड एवरीथिंग. तो इन सब चीजों की वजह से आई गॉट अ मच मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ कंटेंट, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग.
वी जैसे गैरी भी हमेशा बोलता है ना कि इट इज कंटेंट मार्केटिंग और मार्केटिंग ब्रांडिंग स्पेसिफिकली everything is a game of attention span. So what are your views on how to capture the attention? Because what I understand from your way of writing a content, you are more like a storyteller. जो नहीं हम बोलते थे पुराने टाइम में कि देयर वाज अ काबली वाला फ्रॉम अफगानिस्तान who used to tell story to children. तो तुम्हारा स्टोरी टेलिंग है. So how you think that storytelling is an important aspect for anything which is related to marketing, branding, and content, and how it captures the attention of the consumers or the would-be users? Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि हम लोगों ने मार्केटिंग को या कंटेंट को या ब्रांडिंग को एक बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट बना दिया है, वेयर एज इन रियलिटी मार्केटिंग इज रियली वेरी इजी थिंग. और मैं जब मार्केटिंग बोलता हूँ तो मैं ब्रांडिंग और कंटेंट को इंक्लूड करता हूँ साथ में. द रीजन इज मार्केटिंग इज मोर अबाउट साइकोलॉजी. इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर ह्यूमंस, अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस एंड ऑल. तो अगर आपने उनके इमोशंस पकड़ लिए, अगर आप में ये स्किल है कि आपको ये पता लगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आप वो चीज सोच पाओगे. सो यू विल ऑलवेज डू वेरी गुड इन मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एंटायर कंटेंट फील्ड. एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो डू व्हेनेवर आई एम राइटिंग कंटेंट. तो मैं फोकस करता हूँ कि मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, विजुअलाइज करता हूँ कि उस बंदे को अगर मैं ये टॉपिक समझाऊंगा तो मैं कैसे समझाऊंगा. क्या मैं बार बार ये बोलूंगा कि 90% पीपल डू इट बेटर देन दिस, या गूगल स्टडी शो दिस वे दिस इज दिस, या मैं क्या कीवर्ड इंसर्ट करूंगा? नहीं, मैं बिना किसी कीवर्ड के, बिना किसी डेटा को एकदम सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाऊंगा ताकि उस बंदे को समझ में आ जाए. मैं ऐसे विजुअलाइज करता हूँ और फिर मैं एज इट इज उसको अपनी लिंक्डइन पोस्ट में, अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर लेता हूँ. सो इट हेल्प्स मी कनेक्ट विद द रीडर प्रीटी क्विकली, कि रीडर को लगता है कि हार्दिक मुझसे बात कर रहा है, जबकि मेरा कंटेंट इस तरीके से लिखा होता है कि वो अपने आप फील होता है सामने वाले को. सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू. आई विजुअलाइज दैट अ पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी and then I talk to him and then I create that conversation in my content form. Exactly. There was a story. I think I was at IMT. वहाँ पे investors pitch चल रहे थे. There was a very renowned investor from the startup ecosystem. तो एक बंदे ने आके pitch दिया, artificial intelligence से ये कर देंगे, डाटा ये ड्राइव करेंगे, ये करेंगे. The investor, वो मुंबई वाला, टिपिकल मुंबई का इन्वेस्टर, बोले कि देख भाई 30 सेकंड है, तुझे मुझे समझाना है कि तू क्या करना चाहता है, और ऐसा समझाना है कि समझ में 3 साल का बच्चा हो और मुझे समझ में आ जाए. तू इतना समझा दे, 1 CR का तेरा रिक्वायरमेंट है, मैं पैसे लगा दूंगा. नहीं समझा पाएगा 30 सेकंड में तो समझ ले मैं पैसे नहीं दे रहा. तो इट इज लाइक कि जब सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तब तुम फिर marketing and branding is of no use, and content writing, it is completely like you are just wasting your time, money, and any other resources that you are including. So it is a really good point.